Today we are starting new series of lectures in learning physics. The subject we are going to study in this series is classical electrodynamics. Before moving forward, let us understand what this subject actually means. So the first part is classical. In classical, we study the phenomena which are macroscopic in nature. So study of macroscopic phenomena is known as classical study. आज हम लर्निंग फिजिक्स में नई सीरीज ऑफ लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानें कि इस विषय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस विषय का नाम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। तो देखते हैं कि इसमें क्लासिकल का क्या मतलब है। जो अध्ययन मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बारे में बताता है वह क्लासिकल कहलाता है। Let us move to the second part of this subject, electrodynamics. So this word involves dynamics, and dynamics means power. So electrodynamics means power of electric field. इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो शब्द डायनामिक्स है उसका मतलब होता है शक्ति, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति। तो ये हुआ हमारे इस विषय का शाब्दिक विश्लेषण, जिससे हमें एक झलक मिलती है कि इस विषय में हम क्या पढ़ेंगे। So after knowing the words classical and electrodynamics, we get some insight about the subject which we are going to study. So let us start. First, what are the directives of this subject? इस सब्जेक्ट के डायरेक्टिव्स क्या हैं, इस विषय के डायरेक्टिव्स क्या हैं। The first directive of this subject is that the Master of Science course in physics in the curriculum of national and international universities, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के मास्टर ऑफ साइंस कोर्स में फिजिक्स में पढ़ाए जाने वाला ये विषय है। सेकेंड डायरेक्टिव इज टू डेवलप द स्किल्स टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। दूसरा डायरेक्टिव हमारा छात्रों में ऐसी स्किल्स डेवलप करना है जिससे वो इस विषय की अंतरात्मा को जान सकें। The third directive is to prepare for higher studies in electrodynamics. छात्रों को इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हायर स्टडीज के लिए तैयार करना। So we move forward with these directives of our subject. So let us start with electrostatics.
Again, the statics word means stationary. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं और यहाँ स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्जेस और उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करेंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्जेस एंड द फील्ड्स associated with those stationary charges. We will study the time independent phenomena in electrostatics. Electrostatics में हम टाइम इंडिपेंडेंट फिनोमिना के बारे में अध्ययन करेंगे। So when we talk about charges, so what we know about charge? The basic knowledge says that when you rub a glass rod with wool or ebonite rod with silk, they get charged. So how this takes place? So what जब हम एक ग्लास रॉड को वूल से और एबोनाइट रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये फिनोमिना किस तरह से होता है? When glass rod is rubbed with wool, the wool is found to be negatively charged. So what is the reason behind that charge? So what happens? The loosely bound electrons, they get transferred to wool, giving negative charge to wool and equivalent positive charge to the glass rod. जब हम वूल को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वूल पर चले जाते हैं और उसको नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपकी ग्लास रॉड पर आ जाता है। So basically the electron is responsible for the charge. So the fundamental charge which we know is the charge on a electron, and this charge which is negative in nature is equivalent to 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वह फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम के बराबर होती है। Equivalent charge is found on proton. However, the charge on proton is of positive nature. समान चार्ज प्रोटॉन पर पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन पर पाया जाने वाला चार्ज पॉजिटिव होता है। So now we have the basic knowledge of what we mean by charge. So these charges, and when these charges they produce fields, and the time independent fields are studied in electrostatics. Moreover, electrostatics will give us the mathematical equations which will be used in solving the problems of electrodynamics. तो ये टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड्स की स्टडी जो इन चार्जेस की वजह से होता है और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं
जिनसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, वह सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखने वाले हैं। So now let us see the topics which we are going to cover in this series of lectures. तो अब हम देखते हैं कि इस सीरीज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। So 1.1, the first topic which we will study says Coulomb's law. The Coulomb's law is the base of electrostatics. This gives us the base and the quantitative basic equation. Next, 1.2 is the electric field. So in this topic, we will study about the fields produced by the charges. 1.1 में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। और 1.2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। In article 1.3, we will study about Gauss's law, which will tell us about the flux emerging from a surface when some charge is enclosed within it. 1.3 गॉसेस लॉ में हम किसी सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे जब कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होता है। In article 1.3, the differential form of Gauss's law. You will come to know about the differential form of Gauss's law. आर्टिकल 1.4 में हम गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और यहां से हमें डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में पता चलेगा। आर्टिकल 1.5, another equation of electrostatics and scalar potential. This article will tell us about scalar potential and the equation from which scalar potential arises is known as another equation of electrostatics. 1.5 में हम स्केलर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और जिस इक्वेशन में ये स्केलर पोटेंशियल आता है वह इक्वेशन another equation of electrostatics कहलाती है। In article 1.6, you will study about surface distribution of charges and dipoles and discontinuities in the electric field and potential. आर्टिकल 1.6 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल्स और एक सरफेस के साइड से दूसरे साइड पर जाने में जो डिसकंटिन्यूटीज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, उनके बारे में बताया जाएगा। आर्टिकल 1.7 is about Poisson and Laplace equations, and these are the equations which develop the mathematical techniques which will be used in solving the electrodynamics problems. Poisson और Laplace equations वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगी। आर्टिकल 1.8 is Green's theorem. So Green's theorem will give us a technique to solve the problems of electrostatics. Green's theorem हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताएगी आर्टिकल 1.8 में। And in the article 1.9, uniqueness of the solution with Dirichlet or Neumann boundary conditions. We will discuss about the unique solutions when Dirichlet or Neumann boundary conditions are there. आर्टिकल 1.9 में हम सॉल्यूशंस की यूनिकनेस को डिस्कस करेंगे जब
डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन या फिर न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस लगी हुई होंगी। सो इन दिस सीरीज ऑफ lectures we will discuss these 9 articles। तो इस सीरीज में हम इन 9 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट बेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज कूलम्स लॉ। तो हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1.1 से, जो कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है, जिसने कि हमें क्वांटिटेटिव स्टडी के बाद चार्जेस में लगने वाले फोर्सेस के बारे में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बाद हमें एक रिलेशन दिया। सो लेट अस स्टडी अबाउट द कूलम्स लॉ, which gives us a quantitative relation for the forces acting between the stationary charges after experimental verifications। The Coulomb's law, जिसने कि हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद फोर्सेस के लिए रिलेशन दिया है, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। The Coulomb's law says that the force acting between two stationary charges Q1 and Q2 directly depends on magnitude of individual charges। कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में, Q1 Q2 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है, हर चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। द लॉ फर्दर स्टेट्स दैट इट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ये नियम आगे हमें ये बताता है कि ये इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो उन दोनों चार्जेस के बीच में होता है। एंड द लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। और ये नियम हमें बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग होती है जो उन चार्जेस को जोड़ता है। सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ एज फोर्स F is equal to K the proportionality constant Q1 Q2 over R cube and R vector। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आपने लिया है और आपको ये रिलेशन मिला है कि फोर्स F जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 over R cube and R vector। So we get the first mathematical relation of electrostatics given by Coulomb's law for two stationary charges।